ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔ ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہارٹی کلچر یا باغبانی شعبے سے متعلق بات کریں گے۔ سمین، باغبانی یا ہارٹی کلچر کا شعبہ جموں کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے جی ڈی پی میں باغبانی کا شعبہ ایک اہم حصہ ادا کرتا ہے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران پورے جموں کشمیر، خاص طور سے جنوبی کشمیر کے شوپیان، پلوامہ اور کلگام اضلاع میں ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن کا دورہ ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک تو سیب کی کاشت کافی بڑھ گئی ہے، دوسرا یہ کہ سیب کی صنعت سے وابستہ لوگوں کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے باغ مالکان یا جو ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن کے خواہش مند ہمارے کسان ہوتے ہیں، انہیں وقت پر معیاری پلانٹ میٹیریل فراہم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بازار میں اب ایسے بھی لوگ اتر آئے ہیں جو ہمارے کسانوں کو ٹھگ کر ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں معیاری پلانٹ میٹیریل فراہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر پلوامہ ضلع کی بات کی جائے تو وہاں پہ باغبانی کا محکمہ یعنی ہارٹی کلچر محکمہ اس سلسلے میں خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے۔ ضلع میں ہارٹی کلچر شعبے میں ایک انفورسمنٹ ونگ کام کرتی ہے، جس کے ذمہ یہ بات ہے کہ کسانوں کو زرعی کھادیں اور ادویات معیاری فراہم ہوں اور قیمتیں بھی اعتدال میں رہیں۔ ضلع پلوامہ میں اگر دیکھا جائے تو باغبانی کے شعبے میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں کاشتکاروں کی اکثریت روایتی سیب سے ہائی ڈینسٹی سیب کی جانب منتقل ہو رہے ہیں اور اس کے زمینی سطح پر بھی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ہمارے پلوامہ کے نمائندے میر نذیر نے اسی تعلق سے چیف ہارٹی کلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ سے بات کی تو انہوں نے ہارٹی کلچر شعبے کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا۔ سال ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک بمپر کراپ ہے، تو سب سے پہلے میں کریڈٹ دوں گا اپنے جو باغ مالکان ہیں، ان کی محنت اور ان کی کاوشوں سے، ان کی دن رات جو لگن رہی اس شعبے کے ساتھ، تو ان کی محنت الحمدللہ رنگ لائی۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ باغبانی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، ان کو وقتاً فوقتاً جو بھی ہمیں ان کو گائیڈنس دینی تھی ٹیکنیکل لائنز پہ، تو وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے۔ تو ڈے ون سے ہم نے کوشش کی کہ مارچ سے ہی جب ہمارا ایکٹیو سیزن سٹارٹ ہو گیا، تو میں نے پہلے میں خود بھی اس میں شامل رہا اور اپنے جو میرے ماتحت افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کو میں نے پہلے سے بولا جب سے ہمارا سپر شیڈول کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، تو جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پیسٹیسائڈ ڈیلرز ہیں جو اس شعبے کے ساتھ جڑے ہمارے بھائی لوگ ہیں، ان کو میں نے چیکنگ کے لیے اسکواڈز بنائے تاکہ کوئی غلط دوا ہمارے مالکان باغات کے ہاتھ نہ لگ جائے، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈے ون سے کوشش کی کہ جو بھی سپر شیڈول ہمارے پاس ہے، جو ہم نے زرعی یونیورسٹی کے تعاون سے مرتب کیا ہے، وہ جتنا ہو سکے اتنے مالکان باغات تک پہنچ جائے۔ اس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو باغ مالک ہے یہ کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ جائے۔ تو شکر خدا کا کہ ہمارے جو باغ مالکان ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے ہماری بات سنی سمجھی، اور ہم نے الگ الگ جگہ پہ، الگ الگ گاؤں میں، الگ الگ ہارٹیکلچر زونز میں ہم نے اویئرنیس کیمپ بھی کنڈکٹ کر دیے۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ گروورز کے ساتھ بنا رہے، بیچ میں جو گیپ ہے، جو دوریاں ہیں، وہ کم ہو جائے۔ تو میں نے خود بھی اور اپنی پوری ٹیم کو، جس میں ہمارے ذیلی سطح پہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ افسر ہوتے ہیں، جو اس وقت ہمارے پلوامہ ضلع میں لگ بھگ 9 ہارٹیکلچر زون ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ میں میرے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، ان کو میں نے ہدایت دی ڈے ون سے کہ آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، بیچ میں موسم تھوڑا گڑبڑ بھی ہو گیا تھا، یا ونٹر میں بھی تھوڑا ڈرائی اسپیل چل رہا تھا، لیکن میں تب بھی پوری امید تھا کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بیچ میں بارشیں ہوئی، تو ان بارشوں کی وجہ سے جو کمی پیشی رہ گئی تھی، تو الحمدللہ وہ نمی ہماری مٹی میں آ گئی۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے الحمدللہ جتنے بھی یہ سارے فیکٹرز ہیں، ان سب فیکٹرز نے مل کر اس باغ مالک کی محنت کو اپنا بھرپور کنٹریبیوشن دے دیا، اور الحمدللہ آج اب وہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ ریاض صاحب، کتنی یہاں پہ ہارٹی کلچر کی لینڈ ہے پلوامہ ضلع میں، اور ہائی ڈینسٹی میں کتنی ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہائی ڈینسٹی کی لینڈ جو لوگ یوز کر رہے ہیں پلوامہ میں ہے، اور اس طرح کے کیا اعداد و شمار ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پورے ضلع میں لگ بھگ 26-27 ہزار ہیکٹیئر ہمارے پاس ایکریج ہے، جو کہ باغات کے اندر ہے۔ اس میں دونوں ڈرائی اور فریش کی بات میں کر رہا ہوں۔
تو जहाँ तक आपने हाई डेंसिटी की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वैली में हमारा ज़िला पुलवामा हाई डेंसिटी में सबसे टॉप पे है। मैं कह रहा हूँ 50 to 60% जितना एरिया हाई डेंसिटी में पूरी वैली में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ज़िला पुलवामा में है। उसमें मालिकान बागात को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, उन्होंने बहुत इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई। बाद में डिपार्टमेंट ने भी उनका भरपूर ताउन दिया, उनको भरपूर रहबरी की। उसमें हम आज की तारीख में इनको लाखों में सब्सिडी दे रहे हैं और अलग अलग जो कंपोनेंट्स में उनको चाहिए सपोर्ट चाहिए वो हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसमें क्या कौन कौन सी साइंसी लाइनों पे तरीक़ेकार को हमें अपनाना है, उसमें भी हम वक्तन फ़ौक्तन इनको गाइडेंस देते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रेडिशनल बागात से फिर हाई डेंसिटी में आना, इसमें हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है? हॉर्टिकल्चर का इसमें बेसिक रोल है, क्योंकि जो भी इनको गाइडेंस चाहिए, जो भी इसमें चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे जो इसमें जो इसको किस तरीके से हम साइंसी लाइनों पे काश्तकारी करें, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमने यूनिवर्सिटी के ताउन से मुरतब किया है, वो चीज़ें हम इनको दे रहे हैं, इनको रागिब कर रहे हैं, हम अवेयरनेस का कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें हम इनको जानकारी दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास क्या क्या सहूलियात है, किस तरह से हम इनकी गाइडेंस कर सकते हैं, किस तरह हम इनकी माली मामलत कर सकते हैं। तो शुक्र खुदा का ये हमारे ग्रोअर हज़रात भी इसमें पूरा ताउन दे रहे हैं, तो उसमें जो भी हमसे हो सकता है वो हम इनको मुहैया कर रहे हैं। हमारे पास जो भी अलग अलग स्पीशीज होंगी, अलग अलग वैरायटीज होंगी, उतना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। जितना हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना हमें अच्छा कल इसका यील्ड आएगा, अच्छा हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। एट ए टाइम अगर एक ही वैरायटी जाएगी, एक ही स्पीशीज जाएगी, उस टाइम हमें मार्केट में फिर प्राइस कट देखना पड़ता है, प्राइस फॉल देखना सामना करना पड़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल बाग हैं वो भी चलते रहे, उनको भी हम एस्टेब्लिश करते रहें, और नए बागात की तरफ, नए वैरायटीज़ की तरफ भी हमारा रुझान रहे। दोनों चीज़ें ठीक है, एक बैलेंस्ड हमारा काश्तकारी। रियाज साहब, चूँकि आप पुलवामा में हैं और पुलवामा आपने कहा कि एक फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है हॉर्टिकल्चर के हवाले से, और मुझे लगता है कि ये कोल्ड स्टोरेज के लिए भी बड़ा फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपके बिल्कुल पास में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपोरा है, जहाँ एक कोल्ड स्टोर की बड़ी चेन बनी हुई है। तो आप ये जो कोल्ड स्टोर की चेन बनी हुई है, जो पिछले कई एक सालों से काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के मैदान में, तो कितना फ़ायदा है ग्रोवर को कि आपके इसी डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे कोल्ड स्टोरेज हैं? तो इससे बागवालों को कितना फ़ायदा मज़ीद मिल सकता है माली सतह की अगर हम बात करें? देखिए, आपने ये एक बड़ा वसी मौजू है जो आपने कोल्ड स्टोरेज चेन की बात की है। इसमें एक किस्म का एक जो रिस्क रहता है, कभी हमारा नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, कभी जब हमारा एक ही वैरायटी या एक ही स्पीशीज एट ए टाइम हम हार्वेस्ट करते हैं, तैयार हो जाता है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली उसी वक्त मार्केट में बेच देंगे तो वहाँ पे एक किस्म का वो जो जाहिर सी बात है हमारा प्राइस कट हो जाता है, प्राइस फॉल हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे जो बाग मालिकान है उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर वो हमारे पास किसी क्रॉप में, किसी वैरायटी में, किसी स्पीशीज में हमें एट ए टाइम हमारे पास उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम मार्केट प्राइस को देख के, उस ट्रेंड को देख के, थोड़ा सा जो हमारे पास हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर मार्केट का ट्रेंड देख के हम उसको उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं और हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है। इसमें हम 5, 6, 7 महीने तक उसको खींच सकते हैं। बहुत बड़ी सहूलत है, और उसमें जो वो रेंट उनको देना पड़ता है, चार्ज देने पड़ते हैं, वो भी अफोर्डेबल होते हैं। रियाज साहब, पुलवामा में अब इस बार आलमंड का बड़ा रिवाइवल है, जो हमारे निवा के इलाके में, निवा और चरार शरीफ के दरमियान जो बहुत बड़ा वसी रीज जो रुकबा है, जो माना जाता था पुलवामा का जो आलमंड बाउल हुआ करता था, तो कुछ देर के लिए वहाँ पे भी आलमंड में कुछ इस तरह की शिकायतें आती थी कि अभी इसका क्रॉप ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस बार मैंने कोई ग्रोवर्स से बात की जो आलमंड की तरफ ख़ास ध्यान देते हैं और उनके पास आलमंड के बादाम के बागात हैं, क्योंकि कश्मीर का बादाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इवन पूरे इंडिया में फेमस है। तो इस बार आप आलमंड का जो क्रॉप है उस हवाले से आप क्या बताएंगे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की हैसियत से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अगर आप देखेंगे फील्ड में तो शुक्र खुदा का कि उसमें भी अच्छा ठीक ठाक हमें इस साल उसमें प्रोडक्शन आई है, पैदावार आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मौसमी जो हालात हैं, जो बड़ा फेवरेबल रहा हमारा मौसम बादाम की कल्टिवेशन के एतबार से, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। साथ साथ हमने भी कोशिश की एज डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हमसे जितना हो सके हमने वो कोशिश की कि इनको टाइम टू टाइम इनको हम गाइडेंस दे सके। जो भी साइंटिफिक लाइन्स पे इनको कल्टिवेशन करनी है इस क्रॉप की, वो हमने कोशिश की कि जितना हो सके। इस साल से हमने थोड़ा बहुत उसको बढ़ाया, क्योंकि मोस्टली हमारा जो अटेंशन रहता है वो रहता है एप्पल की तरफ, और बाग वाले भी उसी तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो हमने इस साल थोड़ी बहुत कोशिश की स्टार्ट की इनको इसमें भी हम थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सके, ताकि पैदावार जो है वो साइंसी लाइनों पर हमें हासिल हो सके। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो हम चाहते हैं कि एक रिवाइवल हो जाए आलमंड का, उस पस मंज़र में महकमे बागबानी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से और जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस है उनके ताउन से हमने आरपी नवगाम में 100 कनाल पे इम्पोर्टेड वैरायटीज लाई
आलमंड की। तो इंशाल्लाह जब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा पूरी तरह, तो उम्मीद है कि हम अपने जो मालिकान बागात हैं उनको ला सकते हैं, वहाँ पे ले जा सकते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए इस क्रॉप की तरफ और उनका जो मोटिवेशन हो जाए उनके अंदर देखने से। तो उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह आलमंड का किसी हद तक रिवाइवल हो जाए। और रब की मेहरबानी से लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। बेसिक उसमें हमारा रीज़न ये था, हमारा पर्पज़ ये था कि जो भी डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स है उन स्कीम्स को हम अपने ग्रोवर्स के पास तभी ले जा सकते हैं जब उनको उनकी जानकारी हो। तो बेसिक हमारा मकसद उसमें यही था कि उनको जो डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीम्स है उन स्कीम्स में हम अपने ग्रोवर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन से कंपोनेंट्स देते हैं उसकी उनको जानकारी हमने दे दी, और उनको ये भी बता दिया कि आजकल जो ऑनलाइन वाला ट्रेंड है तो वो कैसे इसके लिए अपना ये स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो बागात में इश्यूज होते हैं, उसको भी हमने सुना और हम फेस टू फेस डिस्कस हुआ। यस, तो हमने कोशिश की कि हमसे जितना हो सके ऑन स्पॉट हमने उनको सोल्यूशंस दे दिए। उसके बाद जो उनको बागात में जाके जो भी कोई इशू था उसको भी हमने देख लिया, तो उनके साथ एक राब्ता कायम करने की हमने कोशिश की ताकि जो भी गैप है आपस में वो कम हो जाए और इनको हम आगाही दे दें अपनी स्कीम्स के बारे में। आखिर पे आपका क्या मैसेज रहेगा बहैसियत सरबरा जो आप महकमे बागबानी के पुलवामा में है? तो बाग मालिकान को अब हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी चीज़ें हैं, इनको फ्रूट को प्रिजर्व करना है, मार्केटिंग देखनी है, इस सब के लिए आपके क्या तासुरात हैं और क्या मैसेज रहेगा आपका आकाशवाणी के जरिए से? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी ग्रोवर्स यहाँ पे हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, बड़े वो ताउन करते हैं हमारे साथ, हमारी बात को मानते हैं, हमारे साथ वो राब्ते में हैं। मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि ये राब्ता और मजबूत हो जाए, वो हमारे राब्ते में रहे, मेरे ऑफिस में आ जाएं, मेरे जो ज़ैली अफसरान हैं उनके साथ राब्ते में रहे, और जो भी हम उनको हिदायत देते हैं वक्तन फवक्तन तो उसको वो मिनिमम अमल करे और उससे बाहर न जाए। इसके साथ ही ज़िलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कशप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर व आवाज़ शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।